Good morning, students. I welcome you to RPS online classes. I hope you all are fine. Students, today we are going to talk about new lesson of class ninth from the book Beehive, A Truly Beautiful Mind. This lesson is about Einstein, means Albert Einstein. We know him as a genius in the world. We will talk about his life. We will talk about his childhood in this video, and it will definitely give you some confidence. It will definitely tell you that no matter how simple a person is, he can be a great personality. The lesson will tell you there are no indications sometimes in a ordinary person, but that ordinary person someday becomes a great personality. He did not also he also did not have any special sign that he would become a great person, but Einstein became. So let us read this. Before we read, let us talk about his life here. What do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? हो सकता है ये सवाल हमारे दिमाग में आए, क्या होता है genius? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, a 26-year-old published in quick succession means लगातार, in 1905 four groundbreaking papers, चार reports आई उनकी, about light, the motion of particles, and the electrodynamics of moving bodies and energy. ये अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स रिसर्च उनकी थी. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos. आज हम स्पेस को, टाइम को जिस तरीके से स्टडी करते हैं, उसके पूरे वे में ही बदलाव आ गया. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और उनका नाम जो है, उनको आइंस्टाइन कहो या जीनियस कहो, यानी आइंस्टाइन को ही जीनियस कहा जाता है. आज भी वो जीनियस ही माने जाते हैं. तो लेट अस रीड द टेक्स्ट ऑफ द लेसन. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. यहाँ उनका जन्म हुआ था. Without any indication that he was destined for greatness. इंडिकेशन मतलब ऐसा कोई लक्षण नहीं था उनके अंदर जब वो छोटे थे कि वो ग्रेट बन जाएंगे. डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस मतलब कि वो इतनी महानता के लिए बने हैं, ऐसा उनको बचपन में, उनको जब वो जन्म हुआ देख के नहीं लगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, उसका उल्टा, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. फ्रीक होता है वो इंसान जो थोड़ा सा अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, अजीब होता है. हु इज़ इन बिहेवियर, लुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. टू हर हिज हैड सीम मच टू लार्ज. सिर भी उनका काफ़ी बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज इन टॉकिंग. ये देखो, 2-2.5 साल की एज तक वो बोल नहीं पा रहा था, तो हो गया ना दूसरों से अलग. जनरली अ चाइल्ड स्पीक्स एट द एज ऑफ 1. 1 साल की एज में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बट ये 2.5 साल का भी नहीं बोलता था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. सब कुछ दो बार बोलना है ना, सब कुछ दो बार बोलना. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him boring brother boring. So the youngsters played by himself. यानी वो खुद से अपने साथ ही खेलता था, अकेला. By himself means खुद के साथ खेलता था. Much of the time, much of means he played with himself much of the time. He especially loved mechanical toys. अब उसकी पसंद क्या थी? वो थी mechanical toys. Looking at his newborn sister माजा. उनकी सिस्टर का जब जन्म हुआ, उसका नाम माजा था. He said, उसने कहा कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. यानी उसके व्हील्स कहाँ हैं? उसको भी वो एक टॉय मान रहा था. अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर. हेडमास्टर ने क्या कहा कि एज अ प्रोफेशन, जीवन में वो क्या चुनता है, कौन सा सब्जेक्ट लेता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. यानी हेडमास्टर ने कहा कि इसको कभी सफलता नहीं मिलेगी, किसी सब्जेक्ट में इसको कोई सफलता नहीं मिलेगी.
Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted to. Violin बजाते थे वो. He later became a gifted amateur violinist. Amateur वो होता है जो अपनी पसंद से, अपने मन से, अपनी मर्जी से काम करता है. Amateur violinist यानी वायलिनिस्ट बजाने वाला अपनी पसंद से, पैसा कमाने के लिए नहीं, बस शौकिया तौर पे शौक था उनको. मेंटेनिंग दैट दिस स्किल थ्रू आउट इज लाइफ. और ये स्किल जो उन्होंने थ्रू आउट अपनी मेंटेन रखी, यानी उनको बड़ा मज़ा आता था जब वो वायलिन बजाते थे. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. वो एक खराब स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. जो रेजिमेंटेशन का मतलब क्या था, जो रेजिमेंट जैसा उनका जो एक डिसिप्लिन था उसको वो पसंद नहीं था, और वो टीचर्स के साथ क्लैश करना मतलब टीचर्स के साथ उनका पंगा हो जाता था. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड मतलब दम सा घुट जाना. 15 साल की एज में बड़ा मतलब उसको लगा कि दम सा घुट रहा है. ही फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. स्कूल छोड़ दिया उसने कि कहीं जाऊंगा तो शायद वहाँ और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वो स्कूल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. द प्रीवियस ईयर, उससे पहले साल में, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान चले गए थे पेरेंट उसके, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा सा डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद में उनको एक मौका मिला पढ़ने का. कहाँ पे? उनकी विश पूरी हुई कि वो अपनी स्टडीज़ को जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में पूरी करे. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लिबरल थी, वहाँ पे ज़्यादा आज़ादी थी उसको. म्यूनिक से ज़्यादा आज़ादी वहाँ पे थी, वहाँ पे वो पढ़ना चाहता था. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. वो साइंस पढ़ना चाहते थे तो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था उनका. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वोल्डस मस्टैश. है ना, यानी इस डैशिंग आदमी के लिए जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, साइंस केवल अकेली चीज़ नहीं जो उसको इंटरेस्ट करती थी, शायद कुछ और भी था जिसमें वो इंटरेस्टेड था. किसमें था? He also felt special interest in a fellow student, Mileva Merrick. Mileva Merrick थी, उसमें उनको बड़ा इंटरेस्ट हो गया. Whom he found to be a clever creature. उनको लगा कि वो भी बड़ी clever creature हैं, उसी की तरह जैसा वो है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. वो लेडी क्यों आई थी वहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पे जो वीमेन थी वो डिग्री ले सकती थी. क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख थी, यहाँ पे ये एक दुनिया की यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पे वीमेन जो है औरतों के लिए भी डिग्री मिल सकती थी. यानी एजुकेशन का जो माहौल था फॉर वीमेन वो ठीक था यहाँ पे, जो कि उनके अपनी देश में नहीं था. आइंस्टाइन सो इन हर एन एलाई. एलाई होता है फ्रेंड. उसको लगा उसके अंदर एक साथी है, एलाई है. अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. ये फिलिस्टीन्स किन को बोलते थे? फिलिस्टीन से मतलब उन लोगों से होता था जो ये कहते थे कि जो अपने कल्चर और अपने आर्ट और म्यूज़िक का जो है वो नहीं करता, सम्मान नहीं करता, है ना. अ वर्ड ये लिखा हुआ, अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक. अब जिसको साइंस पसंद थी उन लोगों को वो फिलिस्टीन बोलते थे, ठीक है. तो उसको भी बोलते थे, तो उसको लगा कि यही लेडी है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो सकता है ना. फिलिस्टीन, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. यानी उसको वही, उसमें एक एलाई मतलब फ्रेंड दिखाई दिया. किसमें? मिलेवा मैरिक के अंदर. उसको लगा कि यही एक लेडी है जिसको लोग फिलिस्तीन ज़रूर बोलते हैं लेकिन वो उसके मन की या उसके थॉट्स की लेडी है. बाकी जितने भी लोग थे, चाहे उसकी फैमिली थे, सबके साथ वो यूनिवर्सिटी के अंदर एट ऑड्स रहता था. एट ऑड्स का मतलब होता है सबके साथ पंगा रहना उसका,
सबके साथ किसी न किसी के साथ में उसका रिलेशन हर किसी के साथ में सही नहीं था, किसी को किसी बात पे, किसी के साथ किसी बात पे लेके, बट मिलेवा मैरिक के साथ में उसको लगा कि ही हैड अ फ्रेंड, ही कुड फाइंड अ फ्रेंड इन हर। द कपल फेल इन लव। लेटर्स सर्वाइव इन विच, पत्रों से हमें पता चलता जो लेटर्स लिखे गए थे एक दूसरे के लिए, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, है ना, अपने अफेक्शन को उन्होंने शब्दों में डाला है, यानी अपने प्यार को किस में लिखा, उन्होंने वर्ड्स में लिखा है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, यानी साइंस को भी मिक्स कर दिया उन्होंने, किस में, अपने लेटर्स के अंदर, बिकॉज दे बोथ वर साइंटिस्ट, दे बोथ लव्ड साइंस एक्चुअली। रोट आइंस्टाइन, एक लेटर में आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना मैं खुश हो जाऊंगा, कितना प्राउड हो जाऊंगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम अपना काम जो है ऑन रिलेटिविटी ऑफ अ विक्ट्रियस कंक्लूजन, जब हम अपने काम को एक रिलेटिविटी विक्ट्रियस कंक्लूजन पे ले आए, यानी हमारा जो दोनों का डिसीजन है वो कंक्लूजन पे आ जाए। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी एंड फाइनल डिसीजन पे आ जाए, और फाइनल डिसीजन कैसा हो, विक्ट्रियस हो। यानी एक तरीके से ही वांटेड टू से कि अंत में जो है ना, दे बोथ गेट टुगेदर, यही उनका एक विक्ट्रियस विजयी कंक्लूजन होगा, विजयी जो है ना अंत होगा दोनों का। और वो कैसे होगा, व्हेन दे गॉट टुगेदर एक्चुअली विद ईच अदर। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 साल की एज में ग्रेजुएट तो हो गए यूनिवर्सिटी से, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे। He worked at a technical, he worked at a एज अ टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। गेव प्राइवेट लेसन्स, जिसको ट्यूशन कहते हैं, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, 1902 में उनको जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के अंदर एक पेटेंट ऑफिस के अंदर उनको जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट की। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेस्ड अदर पीपल्स इन्वेंशंस, यहाँ पे उसका काम क्या था कि दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस थे, जो आविष्कार थे, उनको असेस करना, है ना, उनका विश्लेषण करना, उनको देखना। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। एक्चुअली आइंस्टाइन इन सीक्रेट, चोरी छिपे या छुपे हुए, विदाउट टेलिंग एनीबडी, खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क, मजाक में अपने डेस्क को क्या कहते थे, डेस्क ड्रॉर को क्या कहते थे, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी अपने काम का जो ऑफिस था उनका, वो उनका जो टेबल था, उसको वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, मजाक मजाक में। यानी वो इतने ज़्यादा डूबे हुए थे फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, कि उसके अलावा उनको कुछ भी दिखता नहीं था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 के अंदर उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल रिपोर्ट पेश की जो थी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उसने कहा कि समय जो है, टाइम और जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो ये कहना चाहता था। यानी हर बार वही उतना ही टाइम, उतना डिस्टेंस हो, ये क्लियर नहीं है। इंडीड उसने एग्जाम्पल भी दिया कि टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, अगर दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हों, घड़ियाँ हों, बिल्कुल ठीक लगी हुई हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी ऑफ वन of them has been journey if one of them has been moving very fast relative to the other। क्या एग्जाम्पल दिया कि दो परफेक्टली सेट वॉच, एक ही टाइम फिक्स कर दिया परफेक्टली, और दोनों, एक घड़ी उनमें से अगर ट्रैवल करके आती है, दोनों ट्रैवल करके आती हैं, और एक जो है ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है घड़ी, तो दोनों की दोनों घड़ियाँ जो समय है वो एग्जैक्ट नहीं दिखाएंगी। ये उनकी थियरी थी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और यहीं से दुनिया का जो वर्ल्ड फेमस फार्मूला है साइंस में जो हम पढ़ते हैं, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास रिलेशनशिप बताता है मास का और एनर्जी का। यानी कि कौन सा फॉर्मूला है वो, ये है कि E इज इक्वल टू mc²। ये जो फॉर्मूला है ये बना, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर E किसके लिए है, एनर्जी के लिए है, ठीक है, M फॉर मास एंड C
फॉर स्पीड, सी किसके लिए होता है, स्पीड के लिए होता है। तो ये फॉर्मूला यूज में आया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक थॉट है, देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा थॉट है। वो रिलेटिविटी किसको कहते हैं, वो कहते हैं कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, है ना, इट इज़ लाइक 2 मिनट्स, 2 मिनट जैसा लगता है, समय पता नहीं चलता कब गुजर गया। बट व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन आपको 2 मिनट के लिए एक गर्म तवे पे बैठा दिया जाए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। दैट्स रिलेटिविटी। उनकी लाइफ में वही रिलेटिविटी थी, इसी को वो क्या कहते थे, रिलेटिविटी कहते थे। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling मतलब उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी, और वो फिजिक्स के इतने बड़े साइंटिस्ट थे, सबसे बड़ी समस्याओं को वो हल कर रहे थे। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, वो इसको मिलेवा से शादी करना चाहते थे राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वॉज आफ्टर अगेंस्ट इट, उनकी मदर अगेंस्ट थी उसके। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन, पहली चीज़ तो वो 3 साल उससे बड़ी थी, 3 year, है ना, उनको अच्छा नहीं लगा 3 years। दूसरा क्या लगा, टू ओल्ड फॉर हर, उसको लगा वो बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, दूसरा जो मिलेवा थी वो उसकी इंटेलिजेंस के बारे में, दिमाग के बारे में वो भी जो है ना एक तरीके से बॉदर्ड थी, चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक, वो कहते थे कि वो भी एक बुक है, किताब है, यानी उसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है ना। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, वेडिंग मतलब शादी, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मदर खुश नहीं थी उनकी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 में उन्होंने शादी करी एंड हैड 2 sons, बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, कुछ साल के बाद में शादी डिस्टर्ब्ड हो गई, फॉल्टर्ड हो गई, या समझ लो उनका जो रिलेशन था एक दूसरे का, दैट बिकेम वीक, कमज़ोर हो गया। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशन थी उनकी, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन क्या थी, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, शी वॉज परसुइंग साइंस, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो कम हो गई उसके अंदर, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो एक हाउस वाइफ बन के रह गई, वो भी अनहैप्पी, है ना, यानी जो कुछ अचीव करना चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था, और वो एक नॉर्मल जो लेडी होती है उसकी तरह एक हाउस वाइफ बन के रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई साल तक उनकी लड़ाई हुई, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1909, 1919 में जो है उन्होंने डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा के साथ में शादी कर ली, यानी उन्होंने दूसरी शादी की 1919 के अंदर। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, यानी जो दूसरा पर्सनल चैप्टर है मतलब वो कौन सा है, जब वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने 1915 के अंदर एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, पब्लिश कराई, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। क्या किया, ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पावर है, लोगों को उसको समझने में, इंटरप्रिटेशन मतलब समझना, एक नई समझ लोगों के अंदर आई ग्रेविटी को समझने की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और 1919 में जो ग्रेट एक्लिप्स ऑफ द सन हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ एक तरीके से, तब पता चला कि जो 1915 में ग्रेविटी के बारे में आइंस्टाइन ने लिखा था वो बिल्कुल करेक्ट था। अब क्या लिखा था ये देखते हैं। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने करेक्टली कैलकुलेट किया था, कैलकुलेटेड इन एडवांस, पहले ही, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी उसने क्या कहा कि एडवांस में ही एक चीज़ बता दी थी कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक लाइट, जो स्टार्स की लाइट है, फिक्स्ड होते हैं स्टार्स, तो उनकी लाइट है वो डिफ्लेक्ट होगी, कहाँ तक, सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ जहाँ तक सूर्य की जो ग्रेविटेशनल पावर जाती है उसके थ्रू कितनी जो जो रोशनी है वो जाएगी, ठीक है,
यानी कितनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है टकरा के थोड़ा सा दूसरी साइड की तरफ चले जाना एक्चुअली, ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। यानी उन्होंने ये बताया 1915 में बताया अपने रिपोर्ट के अंदर कि सन की जो स्टार्स की जो फिक्स स्टार्स की लाइट होती है वो जब जो सन है उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जहाँ तक उसकी ग्रेविटी जाती है उस एरिया तक जब वो लाइट निकलेगी तो कितनी ज़्यादा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ये उसने 1915 में बता दिया था 1915 के अंदर। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और अखबारों ने उसको क्या कहा कि ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है एक तरीके से। किसमें? साइंस में क्रांति है, उनकी जो रिसर्च थी। आइंस्टाइन received a Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world. showered with का मतलब होता है चारों तरफ से बौछार सी हो गई। किसकी? ऑनर की, सम्मान की, इन्विटेशंस की, पूरी दुनिया से उनको इन्विटेशन मिलने लगे। एंड लॉर्डेड बाय प्रेस, लॉर्ड मतलब किसी को प्रेज करना, प्रेज करना मीन्स किसी को प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। प्रेस ने भी उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई की, बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिखा। When the Nazis came to power in Germany 1933, क्योंकि वो जर्मनी से थे तो 1933 में हमको पता है कि नाजी पार्टी जो है किसकी थी, वो हिटलर की पार्टी थी, है ना। जब ये पार्टी किस में आई, पावर में आई, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन जो है एमिग्रेट करके मतलब दूसरे देश में चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए। 5 years later, 5 साल के बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोव। 5 साल के बाद में जब बर्लिन में एक न्यूक्लियर फ्यूजन का उन्होंने इन्वेंशन कर लिया। किन्होंने कर लिया? कौन से साइंटिस्ट ने? जर्मनी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की न्यूक्लियर फ्यूजन की बर्लिन के अंदर। तो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे वो बेचारे देवर इन अप्रोर, मतलब वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए, वो दुखी हो गए, डिस्टर्ब्ड हो गए। जो साइंटिस्ट थे अमेरिका के, क्यों हो गए? क्योंकि जर्मनी जो है वो अमेरिका का कट्टर दुश्मन था, एनिमी था, और उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन के बिल्कुल न्यूक्लियर पावर बनाने के वो बिल्कुल पास थे। मैनी ऑफ दम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। काफ़ी लोग जो है वहाँ से भाग गए थे, चले गए थे जर्मनी से, जैसे कि आइंस्टाइन चले गए थे, जैसे आइंस्टाइन चले गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाइजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बॉम्ब। अब वो साइंटिस्ट डर गए थे कि नाजीज जो हैं, यानी हिटलर की पार्टी जो थी, उनको हिटलर के जो समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, उनको नाजीज बोला जाता था बिकॉज देयर पार्टी वॉज नाजी। तो वो एक बिल्ड क्या कर सकते हैं? एटम बॉम्ब बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दे वर स्केर्ड एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग। अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट, ऑफ अ कलीग, साथी। आइंस्टाइन के एक फ्रेंड ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट की आइंस्टाइन से, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनका नाम, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, ऑन अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को। ये देखो 2 अगस्त 1939 को, जबकि बॉम्ब पहला गिराया गया था 1945 को। इन विच ही रोट, ही वॉर्न, एक्चुअली उन्होंने वॉर्न किया था। किसको वॉर्न किया था? अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोड अ पोर्ट, पूरे के पूरे पोर्ट को, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी। यानी पोर्ट किसे कहते हैं? जैसे जहाँ पे जहाज, शिप जो होते हैं वो उतरते हैं, है ना, बड़ा सा मतलब एक बंदरगाह होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस जहाँ से जो ना जहाज, शिप जाते हैं, तो बहुत बड़ा बंदरगाह होता है पोर्ट। वो कहते हैं कि पूरे एक पोर्ट को और उसके आसपास के एरिया को भी तबाह कर सकता है इस तरीके का बॉम्ब। तो ये एक वार्निंग थी, किसकी? आइंस्टाइन की, अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, और वो भी 2 अगस्त 1939 को। देखो कम से कम 6 साल पहले जब पहला बॉम्ब गिराया गया। with the same with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect.
और उसके वर्ड्स जो थे उन्होंने इफेक्ट किया। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट। और अमेरिकन ने क्या किया, यानी जब उन्होंने लिखा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या किया, सीक्रेटली एटॉमिक बम बनाया इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। है ना, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे ये बम जो है ना अमेरिका ने सीक्रेटली बना के उनके ऊपर डाल दिए। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय दिस एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस लेवल का, इस हद का जो डिस्ट्रक्शन था, जो तबाही थी, उसको उससे बड़े वो दुखी हुए। डीपली शेकन मतलब बहुत दुखी हुए वो। दिस टाइम ही रोड द पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिसिव मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन से एक पत्र और लिखा उन्होंने, एक लेटर और लिखा काफ़ी लंबा सा। इस बार लिखा यूनाइटेड नेशंस को, यानी यूएसए को नहीं, यूनाइटेड यूएनओ जिसको हम आज बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसने कहा कि दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। जैसे हर देश की एक गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन हैड नो इम्पैक्ट। है ना, इसका कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले कुछ सालों में, डेकेड्स मतलब दशक हम कह सकते हैं, वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए किसमें, पॉलिटिक्स में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डिंग अप, यानी एजिटेटिंग विरोध करते हुए, फॉर एन एंड किस चीज़ का, द आर्म्स बिल्डअप। आर्म्स मतलब फॉर एन एंड टू द आर्म्स मतलब हथियार, बिल्डअप यानी हथियारों को बनाने को लेके, यानी उन्होंने एजिटेट किया कि हथियारों को बंद किया जाए, हथियारों को ख़त्म किया जाए और हथियार न बनाए जाएं। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। अब चूंकि वो बहुत पॉपुलर थे, अपनी पॉपुलैरिटी को उन्होंने किस लिए यूज़ किया, टू कैंपेन मतलब अभियान चलाना, टू फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी यानी शांति और लोकतंत्र के लिए उन्होंने काम किया कि डेमोक्रेसी दुनिया में होनी चाहिए और जो है पीस दुनिया में होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76 की एज में, he was celebrated as a visionary and world citizen। है ना, उनको एक विजनरी यानी कि दूरदर्शी, जो दूर की बात को पहचानता है, आने वाले भविष्य को देखता है, विजनरी बोलते हैं उस आदमी को जो आगे के बारे में सोचता है। विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, उसको वर्ल्ड सिटीजन मानते हैं, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ विजनरी, दूरदर्शी और एक वर्ल्ड सिटीजन, यानी वो किसी देश के सिटीजन नहीं माने जाते कि ही वॉज फ्रॉम जर्मनी और ही लिव्ड इन अमेरिका। उनको माना जाता है दुनिया का सिटीजन, बिकॉज ही वर्कड फॉर द ह्यूमैनिटी, ही वर्कड फॉर द पीपल। उनकी जो नॉलेज थी, उनकी जो साइंस थी, वो उसको लोगों के भले के लिए यूज़ करना चाहते थे। वांटेड टू यूज़ इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक्चुअली ही वांटेड टू वर्क फॉर द डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर एंड पीस फॉर द वर्ल्ड। एक्चुअली इसके लिए वो चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन। इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आप इसको रीड करेंगे, अपने लेसन को अपने घर पे रीड करेंगे एंड देन इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। दैट वुड बी द असाइनमेंट सेपरेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।